all my study fighters. कैसे हैं आप सब? What's up, guys? So, warm welcome to all of you. This is Sun Academy channel. My name is Seema Priya. I'm your science educator, guys. So, let's start today's session, guys. Today we will do wind, storms, and cyclones chapter. Okay, so I'm starting the session with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So warm welcome to all of you guys, and Telegram group को भी join करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because here you are getting all the informations and notifications, guys. Free special classes are there, guys. ये बहुत ही beneficial classes है. Unacademy Learning app पे है ये classes. आपको अभी तुरंत ये if you don't know about this, अगर अभी तक आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है Unacademy Learning, आपको जल्दी से इंस्टॉल कीजिए और जल्दी से हिस्सा बन जाइए Unacademy का. And free test series are also there. These are also very beneficial, guys. If we talk about the plus subscription, here you are getting India's best educator, interactive live classes, live tests and quizzes, and structured courses and PDF, guys. If we talk about the iconic subscription, so whatever you are getting in plus subscription, it is included here. And other than that, you are getting your personal mentor and live doubt solution. And plus subscription के लिए, guys, for given month, you can see here for respective month you have to pay accordingly. And very, I think बहुत ही ज़्यादा reasonable है आप सबके लिए. आप ज़रूर आप try कर सकते हो. नेक्स्ट इज गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स के साथ आपको इतना पे करना है और ये काफी ज्यादा रीजनेबल है. सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई, गाइज. नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर टेलीग्राम चैनल फॉर क्लास 7, गाइज. आप ये लिंक यूज करके क्लास 7 का चैनल ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज टेलीग्राम पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती है, कौन से लाइव इवेंट्स होने वाले हैं, कौन से एक्टिविटीज, कौन सी क्लास होने वाली है. So practice sections are also there for maths and science, guys. Book a class and learn with top educators. अभी के अभी आपको book करना है ताकि आप top educator से पढ़ सके. So don't forget to use my code. My code is SEEMA10. You will get 10% extra discount. So please like, share and subscribe. Don't forget to do it. Now I am starting the session, guys. Today we will do this chapter. Wind, storms and cyclones. ठीक है. So what do you mean by wind? So wind is actually moving air. Moving air is called wind. Since air is a mixture of gases. Air क्या है? Mixture of gases है. Wind is flow of gases on a large scale. बहुत ही बड़े large scale पे air जो है वो जो मिश्रण होता है gases का वो क्या करता है? वो फ्लो करता है. विंड आर कॉज्ड बाय हिटिंग डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ. तो विंड क्या है? विंड बेसिकली, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि विंड आर कॉज्ड बाय द हिटिंग डिफरेंस. ये हिटिंग डिफरेंस की वजह से ये होता है. ठीक है. लाइक कह सकते हैं अनइवन हिटिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे जो डिफरेंट हिटिंग है, हिटिंग इफेक्ट है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है. ये जो डिफरेंस है हिटिंग में ये कॉज करता है. एक्चुअली ये रीजन है विंड के फ्लो करने का. यू कैन सी इवन अगर हम बात करें इन प्लांट्स की तो ये भी क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द विंड. ठीक है. और विंड किस पे डिपेंड करता है? बिल्कुल प्रेशर पे डिपेंड करता है. और उसके साथ साथ ये क्योंकि प्रेशर इनडायरेक्टली ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देन फिर आपका आ गया हीटिंग इफेक्ट. ठीक है. कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है. Now next topic is, guys, बाकी काफी सारे टॉपिक्स मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे. ठीक है. So this is our first topic of today, that is wind current. Wind currents क्या है? The wind is the movement of air which depends on the difference in air pressure in two regions. दो अलग अलग regions है. वहां पे प्रेशर में कितना अंतर होता है, कितना डिफरेंस होता है, वो एक्चुअली विंड के मूवमेंट विंड का मूवमेंट उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन. ये याद रखना, हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में ही फ्लो करती है, मूव करती है. सो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर रीजन. इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? कोई डाउट? ओके गाइस. नाउ लुक एट हियर नेक्स्ट. नेक्स्ट आता है दिस डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज क्रिएटेड बाय अनइवन. ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? अनइवन हीटिंग. तो आपको ये दो चीजें लर्न करनी है.
You have to learn these two things. ठीक है, एक आपको लर्न करना है रीजन. सो वो आपका रीजन है अनइवन हीटिंग. अनइवन हीटिंग जो है वो रीजन होता है आपका एयर का, एयर फ्लो करने का, एयर प्रेशर जो भी क्रिएट हो रहा है वो अनइवन हीटिंग की वजह से ही हो रहा है. एक ये आपको करना है, और यहाँ पे आपको करना था कि एयर जो है वो हमेशा मूव करता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, रीजन मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ही करता है, और ये अनइवन हीटिंग की वजह से होता है. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवा चल रही है. ठीक है, सो ये हवा की डायरेक्शन क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करती है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. So the uneven heating on the earth takes place in two situations. दो situations में ही होता है. Between the equator and poles, या पोल से या इक्वेटर के बीच में ऐसा हो. The region of the earth which is close to the equator, इक्वेटर के जो भी पास वाले रीजन है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट मिलता है. एंड द एयर इन दीज रीजन, और तो इसीलिए यहाँ पे जो हवा होती है बहुत गर्म हो जाती है, और जैसे हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ इट स्टार्ट राइजेस अप. ठीक है, और वो फिर नीचे वाला जो पार्ट है वो उसे लो एयर प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है. नीचे वाला पार्ट, लुक इट हियर, विंड था, एयर जैसे गर्म हुआ तो वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया. ठंडी एयर होगी वो नीचे की तरफ सिंक करेगी. ठीक है, क्योंकि अनइवन हीटिंग है, कहीं ज्यादा कहीं कम. सो जो भी आपका इक्वेटर के पास, अर्थ के इक्वेटर के पास जितने भी आपके रीजन्स आते हैं, ठीक है, वो सभी जो है वहां पे मैक्सिमम हीट मिलता है सन से. तो उस केस में क्या होता है, वहां पे हवा जो होती है, एयर जो है वो गर्म हो जाती है और इट स्टार्ट राइजेस अप. ठीक है, एंड जो कूलर एयर है, जो ठंडी हवा है, एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ अप टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का मतलब होता है जो एंगल फॉर्म होता है 30 डिग्री का. सो जो 30 डिग्री का एंगल है, इट मूव्स ऑन ये, यस यस, ये इक्वेटर है बच्चा. ये जो बीच वाला पार्ट है ना, सेंटर वाला पार्ट, ये इक्वेटर है, ये वाला और ये वाला इक्वेटर है. ठीक है, सो इक्वेटर मूव्स ऑन रशेस टूवर्ड्स द इक्वेटर. सो आपका जो ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर है वो आपका फिर वो मूव करना शुरू कर देता है, रिप्लेसेस द वार्म राइजेस एयर. होता क्या है, गर्म हवा, जो गर्म हवा यहाँ थी, जो गर्म हवा यहाँ थी, वो जो वार्म एयर थी वो तो इट स्टार्ट राइजेस अप, वो तो ऊपर की तरफ जाने लगी. जब ये ऊपर की तरफ गई तो ये वाला एरिया खाली हो गया, तो इस वाले एरिया को किसने फिल किया, फिल्ड बाय कूलर एयर. जो ठंडी हवा है उसने उसकी जगह ले ली गर्म. यही प्रोसेस चलता रहता है. दिस मेक्स द विंड टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्वेटर. और नॉर्थ साउथ से इक्वेटर की तरफ यही जो होता है वो हेल्प करता है. एट द पोल्स, अगर पोल्स की बात की जाए, द एयर इज कोल्डर देन एट लैटिट्यूड. यहाँ पे ठंडा होता है, देयरफॉर वार्मर एयर मूव्स डाउनवर्ड. यहाँ पे ठंडी होती है हवाएं, इसीलिए जो गर्म हवा है that moves upward, वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ जाती है. This makes the wind blow from poles of the earth towards the warmer region. So basically क्या होता है, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती है. ठीक है, ये आपका कूलर एयर है नीचे की तरफ, और जो गर्म है आपका हॉट एयर है वेट. सो आपका क्या है, जो कूलर एयर है वो तो नीचे की तरफ आएगी, और जो आपका हॉट एयर है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा. इट राइजेस अप, क्योंकि हल्की हो जाती है वो. तो ये आपके पोल्स है, ये आपके इक्वेटर है. हैव यू अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ से? तो यहाँ से हवा जो है इक्वेटर की तरफ, सो ये आपका इक्वेटर है. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके. नाउ गाइस, आस्क अ डाउट. बहुत ही इंटरेस्टिंग नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है अनअकैडमी में. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आस्क अ डाउट का दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, यू हैव टू क्लिक इट. जब आप इसे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा.
सपोज करो आप मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, यू हैव टू क्लिक, आपको क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है, यू हैव टू पेस्ट इट हियर। जब आप इसे पेस्ट कर दोगे यहाँ पे विद इन 3 आवर्स यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, और वो आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काफी नई और इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस हुई है, सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। नाउ नेक्स्ट इज गाइस अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर का अनइवन हीटिंग की बात की जाए ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम में द अर्थ नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वार्म एयर फास्टर देन द वाटर इन द ओशियन, ओशियन से इक्वेटर पे जो हवाएं चलती है गर्म हवाएं वो ज्यादा होती है। सो द एयर अबव द लैंड, लैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, एंड इट राइजेस अप इन द स्काई क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। लुक एट एयर क्या होता है, सपोज करो ये आपका लैंड है, ठीक है, और ये आपका सी है। तो लैंड के ऊपर का जो यहाँ पे जो एयर था वो हो गया वार्म, गर्म हो गया, और जैसे गर्म हुआ वो क्या हुआ, इट स्टार्ट राइजेस अप, गर्म हवा जो है हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो है ये वाला एरिया ये आपका लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। वेट, तो ये आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। जब आपका ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ तो उससे क्या हुआ, द विंड फ्लो फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड। अब जो ओशियन से जो हवा है, जो ओशियन से हवा है वो किस तरफ जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी, ओशियन से हवा लैंड की तरफ जाएगी। अब ये जो यहाँ पे हवा लो प्रेशर बन गया क्योंकि यहाँ पे हवा जो थी वो गर्म हो गई और ऊपर की तरफ आ गई, यहाँ पे अब हवा नहीं है। तो ओशियन से जो ठंडी हवा है, जो कूलर एयर है, वो रिप्लेस कर देगी, वो क्या कर देगी, लुक एट हियर, मैंने आपको यहां समझाया था, इफ यू सी अ हॉट एयर और कूल एयर पूरा अच्छे तरीके से समझाया था। तो वो वाला जो पार्ट है, अब ये वाला जो पार्ट है कूलर एयर जो है वो उस पार्ट को फिल कर देगी। ये वाला जो पार्ट है, हुआ क्या है, लैंड के ऊपर सपोज करो, लुक एट हियर गाइस, सपोज करो ये लैंड है, तो ये यहाँ पे जो हवा है वो गर्म हो गई। जब वो हवा गर्म हो गई तो हल्की हो गई, वो ऊपर की तरफ चली गई, जब ऊपर की तरफ गई तो ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब इस जगह को कौन लेगा, ठंडी हवा, वो ठंडी हवा कहां से आएगी, सी से, ठीक है, ओशियन से, समुद्र से वो ठंडी हवा आएगी और उस एरिया में आके ठंडी हवा उस प्लेस को फिल कर देगी, फिर वो वापस गर्म होगी, वो ऊपर जाएगा, फिर वो आएगी उसे प्लेस को फिल कर देगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूं तो इसी को सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो होता है ना, एक्चुअली में यही होता है। सी ब्रीज जो होता है जब सी से हवा लैंड की तरफ बहती है, जो कि मॉर्निंग के टाइम पे, वही अगर हम रात के वक्त कहें, ठीक है, ये देखो ये हवा कहां से आ रही है, ये हवा जो है वो सी से बह रही है, किसकी तरफ, लैंड की तरफ, तो दिस इज योर सी ब्रीज। लेकिन अगर रात के वक्त क्या होता है, आपकी सी के ऊपर की जो जगह होती है, जो नदी समुद्र के ऊपर का जो पार्ट होता है, वहां की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और लैंड जो है वो ठंडी हो जाती है। तो लैंड के ऊपर की हवा ठंडी होती है, तो उस टाइम हवा जो है लैंड से सी की तरफ बहती है, प्रोसेस सेम है। लैंड के ऊपर की हवा गर्म, ऊपर लो प्रेशर एरिया, उसको लैंड की हवा जाके ठंडी हवा जो है उसकी प्लेस को फिल कर देगी, उस प्लेस को, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर। तो रात के वक्त लैंड ब्रीज होता है, दिन के वक्त सी ब्रीज होता है। लैंड ब्रीज का मतलब लैंड से सी की तरफ जब हवा बहती है, ठीक है। दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम एंड ब्रिंग रेन, इसमें बहुत सारी हवा के साथ साथ बारिश भी लेके आता है। इट इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल का पार्ट ही है। ओशियन जो है, ओशियन में पानी गर्म हुआ, स्टीम बना, भाप बना, वेपर्स फॉर्म में ऊपर गया, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपस में जुड़े मिले और उनसे क्लाउड फॉर्म हुआ। क्लाउड जब बहुत हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो बर्स्ट हो जाता है और उससे फिर बारिश के रूप में पानी नीचे आता है। These rain bearing winds are called as monsoon wind, इसी को monsoon wind कहा जाता है। Is this clear? विंटर के टाइम में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड गेट्स रिवर्स,
रिवर्स्ड हो जाता है. विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज क्या होता है? नाइट ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, रिवर्स हो जाता है. ठंडी हवाएं जो है लैंड से सी की तरफ बहती है. दिस हैपन बिकॉज ड्यूरिंग विंटर द लैंड कूल्स डाउन, क्योंकि लैंड जो है वो ठंडी हो जाती है, और जो वाटर ओशियन के ऊपर है वहां का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसीलिए हवा जो है वो लैंड से कहाँ बैठती है, बहती है, फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, सी के टूवर्ड्स बहती है. ठीक है, दैट्स वाई इसको लैंड ब्रीज कहते हैं. सी ब्रीज किसे कहते हैं? जब मॉर्निंग के टाइम में या गर्मियों के टाइम में हवा सी से आपका बहती है लैंड की तरफ. इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, सो ये आपका हो जाएगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. तो ये आपका है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की बात की जाए. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. कोई डाउट नहीं होगा आपको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द वार्म एयर. जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है ओवर द ओशन. ओशन के ऊपर की जो गर्म हवा है राइजेस अप, वो ऊपर की तरफ जाती है, क्रिएटिव लो रीजन. वही सेम है, वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया. अगर ये लैंड है, ये सी है, तो आपका विंटर के टाइम पे क्या होता है, या ये ठंडा होता है, तो यहाँ पे कूलर एयर है, और सी के ऊपर जो है जो एयर है वो गर्म हो गई, वार्म हो गई, और वार्म होने के बाद इट राइजेस अप, वो ऊपर चली जाती है. जब वो ऊपर जाती है तो ये वाला एरिया जो है लो प्रेशर एरिया हो गया, तो ये कूलर एयर जो है ये इसकी जगह को फिल कर देगा. ठीक है, जब उसे फिल कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, वो ठंडी हवा जो है उसने उसकी जगह ले ली, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा. तो सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. कोई डाउट यहां तक? ओके. नेक्स्ट इज द समर मॉनसून. अगर मैं समर मॉनसून की बात करूं, विच ब्रिंग हैवी रेन, बहुत ज्यादा तेज बारिश आती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स. फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनुअल रेनफॉल जो है उनके क्रॉप्स में, उनकी फसल जो वो उगाते हैं वो उसमें हेल्प करता है. फार्मर्स डिपेंड्स ऑन रेन. एक्चुअली में फार्मर्स जो है, क्योंकि इतना पानी कहाँ से लेके आए, तो वो रेन के ही, बरसात जो होती है, बारिश होती है, उसी पे वो उसी का इंतजार करते हैं, उसी पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द इरिगेशन, सिंचाई के लिए. इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई, पानी डालना. समटाइम्स रेन क्रिएट सम प्रॉब्लम ऑल्सो, लेकिन कई बार बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे फसल भी खराब हो जाती है, क्रॉप्स खराब भी हो जाते हैं. देयर आर सर्टन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर. डिजास्टर हो सकता है, ठीक है, और इंसान के लिए एक तरीके से थ्रेट भी है. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत ही इंजॉयफुल होती है. हम लोग अगर आप अपनी और मेरी बात करें, ठीक है, आप मेरी और अपनी बात करेंगे, सो डेफिनेटली कह सकते हैं. वेट गाइस, ओके. सो अगर आप अपनी और मेरी बात करेंगे तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि बारिश का जो मौसम है वो एक इंजॉयमेंट के लिए भी होता है, प्लस हमारे लिए काफी यूजफुल भी है. ठीक है. विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन. अगर हम विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन की बात करें, सो अगर उसी से पता चलता है कि स्टॉर्म, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे एनोमीटर कहते हैं. ये होता है एनीमोमीटर. वो डिवाइस होता है गाइस, ये वो इंस्ट्रूमेंट है ये, जो हमारा यूज आता है विंड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि विंड की क्या स्पीड है. इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके. नाउ नेक्स्ट इज गाइस थंडरस्टॉर्म. व्हाट डू यू मीन बाय थंडरस्टॉर्म? बिजली का कड़कना. सो व्हेन एयर मूव्स जेंटली, जब हवा बहुत ही स्लोली स्लोली, बहुत ही अच्छे से धीरे 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 मूव होती है, उसे ब्रीज कहते हैं. ब्रीज का मतलब है ठंडी ठंडी हवाएं जो बहुत ही चेहरे पे लगती है तो सॉफ्ट. एक होता है बहुत ही वॉयलेंटली स्पीड में हो रही है, आप बिल्कुल, आपके कपड़े उड़ गए, आप बिल्कुल, आप खुद प्रेशर फील कर रहे हो, आपकी आंखों में धूल जा रहा है, आप बहुत इरिटेट हो रहे हो. सो वो जो वॉयलेंटली मूव्स अगर करेगी एयर, सो वो हाई स्पीड में, तो वो हमारा स्टॉर्म हो जाता है. सो व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर ड्रॉप्स इट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म. तो जैसे प्रेशर, एयर का प्रेशर जैसे कम होगा, इसका मतलब है आंधी तूफान आने का के चांसेस हो जाते हैं. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर अलोंग विद द राइजिंग वार्म एयर प्रोड्यूसिंग साउंड, लाइटनिंग, हेवी रेन एंड स्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या है? एक्चुअली में थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है जिसमें आपकी बारिश भी हो,
बिजली भी कड़के, तेज हवा चले, बहुत ही आंधी तूफान बहुत ही तेज चले, ठीक है, ये सब जो है ये आपका थंडरस्टॉर्म कहलाता है। यहां से आप लर्न कर सकते हैं, इट इज गिवन हियर। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? थंडरस्टॉर्म समझ आ गया? सो बारिश भी होती है और बारिश के साथ आप लोगों का क्या होता है, और ठीक है, बिजली का कड़कना और आपका साउंड प्रोड्यूस होना, ठीक है। सो इट डेवलप्स इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, ज्यादातर उस एरिया में होता है जहां बहुत ही गर्मी, लाइक इंडिया इज अकम्पनीड बाय हेवी रेन, यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल भी, जो ओले पड़ते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। थंडरस्टॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डार्क क्लाउड्स, जो थंडरस्टॉर्म होते हैं बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे कितने जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, बहुत ही डार्क हो जाते हैं, ब्लैकिश कलर का, पूरा मौसम अंधेरा अंधेरा छा जाता है पूरे आसमान में, ठीक है। इन ट्रॉपिकल एरिया द एयर गेट्स वार्म्ड अप, ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ जाती है, दैट आई हैव टोल्ड यू। वेयर एज ह्यूमिडिटी प्रोवाइड्स द वाटर वेपर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और जब वो ऊपर जाता है तो वाटर वेपर में अगर जब कंडेंसेशन प्रोसेस आता है, उसका भाप वापस पानी में कन्वर्ट होता है, तो उससे फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ड्रॉपलेट्स जुड़ के फिर वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। इज दिस क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कैन बी सेट टू अकर अ थंडरस्टॉर्म, इट रिक्वायर्स मॉइस्चर रैपिडली राइजिंग वार्म एयर। सो अगर थंडरस्टॉर्म है तो इसका मतलब है कि वार्म एयर बहुत जल्दी जल्दी, इट राइजिंग वार्म एयर, सी ब्रीज ऑन माउंटेन और माउंटेन्स, ये सब जो है ये सब चाहिए तभी होगा। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम पे गाइस? थंडरस्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटिंग, लाइटिंग बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, इट मे किल पीपल, लोगों को मार भी सकता है ये, एनिमल एंड कैन डैमेज बिल्डिंग, बिल्डिंग सब डैमेज कर सकता है। देयरफॉर यू मस्ट टेक, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचने के लिए, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन ओपन एरिया, जब आप ओपन एरिया में होता है, डू नॉट टेक शेल्टर, कभी भी शेल्टर मत लो आइसोलेटेड ट्री और बिल्डिंग के नीचे कभी जाके ऐसे मत छुपो, ठीक है। इफ यू आर इन फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में हो टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, अगर आप फॉरेस्ट में हो तो जब भी शेल्टर लो तो स्मॉल ट्री, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं उसके नीचे लो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कभी भी ऐसे मत लेटो, आपको लग रहा है कि आप बहुत ही इंजॉय कर रहे हो तो ये काम नहीं करना। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे नहीं करना क्योंकि मेटेलिक एंड होता है, ठीक है। नेवर सिट नियर अ विंडो, विंडो के आसपास कभी मत बैठो। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स, इनके कभी आसपास मत रहो क्योंकि यहाँ पे बिजली जब आती है तो इनके कांटेक्ट में आके सीधे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वन कैन टेक शेल्टर इन कार और बस, कार और बस में शेल्टर ले सकता है। डू नॉट गो इन द वाटर, पानी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जाओ, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अपने में से पास होने देता है। When you are in inside, जब आप अंदर रहते हो, डू नॉट सिट नियर और ओपन विंडो, विंडो के आसपास मत रहो। क्लोज द डोर्स एंड विंडोज प्रॉपरली, विंडोज को और डोर्स को पूरी तरीके से क्लोज कर दो। डू नॉट टच, किसी चीज को ऑपरेट, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बिल्कुल टच मत करो। डू नॉट वॉच टीवी, टीवी को बिल्कुल नहीं, टीवी मत ऑन करो। तो ये सारे प्रिकॉशंस है। When air moves gently, guys, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। I have already explained this to you. I hope कि आपको समझ आ गया हो, ठीक है। सो ये आपका जो है आप देख सकते हो कि किस तरीके से जब बिजली कड़कती है, जब आंधी तूफान आता है, नेचुरल कैलामिटीज में आपका कुछ भी आ सकता है, टॉर्नेडो आ सकता है, वहां पे दिख रहा है आपको टॉर्नेडो, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, साइक्लोन होता है, ठीक है। सो ये सब जब आता है तो ये पूरी तरीके से तबाही मचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर साइक्लोन। अगर मैं साइक्लोन की बात करूं, साइक्लोन इज अ वेदर कंडीशन, एक वेदर कंडीशन है कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड, हाई स्पीड विंड का एक कंडीशन होता है जिसमें रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया, जहां पे लो प्रेशर एरिया बन गया ना, वहां पे वो क्या करेगा, वो अपने आप को गोल 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 घुमाना शुरू कर देगा। साइक्लोन डेवलप ओवर ट्रॉपिकल सीज, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना, सीज होते हैं, वहां पे वो होता है। इट इज अ वायलेंट स्टॉर्म, बहुत ही ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म है विद जिसकी स्पीड 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कैन यू इमेजिन कि उसकी कितनी ज्यादा स्पीड होती है। साइक्लोन जो ट्रॉपिकल सीज के ऊपर आप देखोगे समुद्र का पूरा ऐसे 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 घूमना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड मतलब अगर उसके चपेट में, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए, कोई बड़े से बड़ा मतलब कुछ भी आ गया, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट इज अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेन्स, इसमें बहुत ज्यादा तेज बारिश भी होती है, ठीक है। यू कैन सी हियर,
आप देख सकते हैं कि इसके अब इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो समझ लो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर मैं अब साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया। साइक्लोन अगर ये बन रहा है तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, लुक एट हियर गाइस, ये जो सेंटर पार्ट है ये आपका लो, आप कह सकते हो, ठीक है, लो प्रेशर एरिया या काम भी कह सकते हो, काम एरिया है। ठीक है, एंड इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। इसको स्टॉर्म का आई कहा जाता है। डायमीटर ऑफ द आई वरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो इसका डायमीटर होता है वो 10 से 30 किलोमीटर के बीच का होता है। इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स। इसमें बहुत ही लाइट विंड होती है, बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं होता। इसका डायमीटर जो होता है 10 to 30 किलोमीटर होता है। अराउंड दिस, इसके चारों तरफ, ठीक है, देयर इज अ क्लाउड रीजन अराउंड ऑफ 150 किलोमीटर इन साइज। बट उसके चारों तरफ ये देखोगे आप, ये वाला पार्ट जो इसके चारों तरफ का जो पार्ट है वो 150 किलोमीटर इन साइज होता है। और वही जो है द रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड, इसी में हाई स्पीड विंड यही क्रिएट होता है। एंड थिक क्लाउड्स विद हेवी रेन, थिक क्लाउड्स फॉर्म हो जाता है जिसमें बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। और अगर इस रीजन से बाहर जाओगे तो जो हवा है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इज दिस क्लियर? अगर मैं साइक्लोन की फॉर्मेशन की बात करूं सो कुछ कुछ फैक्टर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन। अर्थ का रोटेशन क्या है, ये सब कंट्रीब्यूट करता है साइक्लोन में। एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए टू फॉर्म द सस्टेन एंड साइक्लोन कम्स फ्रॉम द हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर present in moisture rising from the surface of hot sea water that condenses at altitude to form a cloud। होता क्या है, जो सी वाटर है उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद इट राइजेस अप, वो ऊपर की तरफ चली जाती है जो गर्म हवा होती है। ठीक है, और वो ऊपर जाने के बाद क्या करती है, हॉट सी वाटर दैट कंडेंसेस, ऊपर जाने के बाद भाप बन जाता है, और भाप बनने के बाद वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, पानी भाप वापस पानी बनता है जिससे वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, टू फॉर्म अ क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड फॉर्म करता है। और वही क्लाउड्स जो है कहीं ना कहीं आप लोगों का देखा होगा कितना गोल 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 एक राउंड 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 शेप में वो घूमता है और फिर वो एक रीजन क्रिएट कर लेता है। सो व्हेन द एयर अबव द सी वाटर के ऊपर वाले का जो एरिया है, जब वो हवा गर्म हो जाती है, इट हीटेड, रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि गर्म हवा जो है वो ऊपर चली गई। मतलब यहाँ ये सी है, सी के यहाँ वाला जो एयर है वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये वाली जो एरिया है ये फिर क्या हो जाता है, ठंडी हवा के द्वारा इस पार्ट को ले लिया जाता है, इस एरिया को ले लिया जाता है। एंड द कूल एयर रशेस इन फोर्सिंग अप मोर हॉट एयर। और ठंडी हवा यहाँ आती है, गर्म हवा फिर वापस जाती है, ठंडी एरिया हवा यहाँ आती है, फिर गर्म हवा ऊपर जाती है। So the process of moving warm air up and its replacing by hot air is repeated again and again, making or setting up of a cycle of air current। और उसी की वजह से साइकिल बनता है। गर्म हवा हुई, ये आपकी क्या है, सी है, सी के ऊपर वाली जो हवा है वो क्या हुई, ऊपर गई गर्म होके, ठंडी हवा यहाँ आ गई लैंड से, ले ली लैंड से यहाँ आके इस जगह को फिल कर लिया, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर ठंडी हवा लैंड से यहाँ आएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता है और यही प्रोसेस एक साइकिल क्रिएट कर लेता है। एंड वंस द साइक्लोन इज फॉर्म, और जैसे साइक्लोन फॉर्म होता है इट बिगिंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द सी, सरफेस के ऊपर ना वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड द हैवीएस्ट रेन, तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट विंड और जो बहुत ही हैवी रेन होती है, द टारिंग थंडर क्लाउड्स अबव 20 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन कम्स टू द एंड, और फिर साइक्लोन जो है वो एंड पे कब आता है, फर्स्ट साइक्लोन मूव्स ओवर द लैंड। जैसे वो सी से लैंड की तरफ वो साइक्लोन ऐसे ऐसे घूमता 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 जैसे वो लैंड की तरफ जाना शुरू करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज इट नो लॉन्गर रिसीव्स हीट एनर्जी, क्योंकि वो अब हीट एनर्जी उसको नहीं मिल रहा है, एंड मॉइस्चर फ्रॉम द वार्म सी वाटर, क्योंकि उसको जो एनर्जी मिल रही थी यहाँ से, जो ये वाला एरिया जो था, जो गर्म हवा हो रही थी ऊपर की तरफ जाके, उससे उसे एनर्जी मिल रही थी, ठंडी हवा इसको ले रही थी, इस जगह को फिल कर दे रही थी, फिर वो गर्म हो रही थी, फिर वो ऊपर जा रही थी, ठंडी हवा इस जगह को फिल कर रही थी। तो इसके वजह से इसको एनर्जी भी यहीं से मिल
looking for also one third. Also maybe body problems in there. Yeah, होता है ठीक है UV ठीक है यहाँ पे नहीं है एक साइक्लोन दैट्स हम बोलते हैं मनी से ओशन में तो ऐसे साउथ से तो कई सब कुछ होते हैं तो अल्ट्रा भी है ओशन तो अलग अलग जाने जा रहे हैं मैं बेसिकली टाइप अकर्स इन आप these are based on that कोई करेगा वो भी नहीं बचेगा ठीक है but when it's put towards the first issue I don't know कि वो वाला है नहीं शुरू हो जाता है एक्सपीरियंस साइक्लोन प्रेजेंट फ्रॉम the low pressure area if the water may be 50 millimeter ऊपर okay जो कैपिटल वॉल एक वॉल की तरह दिखता है मूव टुवर्ड्स द शोर ऐसा लाइन कैपिटल है ऐसे होती है आप बहुत वो ये क्या होता है कोस्टल एरिया और जो इवन जो ड्रेनिंग है उसको वॉल्यूम कर देते हैं वाटर फ्री वहां पर बड़ा इफेक्टिव सेफ्टी हम ले सकते हैं ऑन पार्ट साइक्लोन वाटर से होना चाहिए उससे करना चाहिए इनसे लेती रहनी चाहिए और सिस्टम से कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आने चाहिए और दो साइड वहां पे जहां पे ज्यादा इसका रेट प्रोसेस से लेना चाहिए ठीक है ऑन द पार्ट लोगों अगर लोगों का ये हमेशा वो बिल्कुल तैरना शुरू या अगर आपको जैसी सर्विस रिलीज हो गया आपसे नहीं चाहिए ठीक है कुछ अलग ले वो बेड्स तो बिल्कुल भी मत जस्ट फॉर सेक ऑफ फन आपको ये नहीं कि क्या साइड होना चाहिए छोड़ो आगे क्या साइड पता लगा जैसे बाहर खेलने की जस्ट फॉर योर ट्रेंड तो खेलने आपको ठीक है यू फोर्स फॉर मेकिंग अंडर डिमांड कभी किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं अभी कभी चाहिए सो डोंट is this my session thanks for watching my session hey guys so this guys so now I definitely bye bye